کی پہلی 4 آیات اور پھر دوسرے باب کی 17 اور 18 2 آیات. خدا کا کلام دیکھیے میرے ساتھ. نہمیہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی 4 آیات. اور آج دوپہر اس سیمینار میں ہم جس چیلنج پر جس عنوان پر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ ہے یروشلم کی فصیل کی تعمیر نو. نہمیہ کی کتاب پہلا باب پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں. نہمیہ بن ہکلیہ کا کلام 20ویں برس کسلیو کے مہینے میں جب میں کسرے سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی. دوسرا باب 17 آیت سے. تب میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہے. اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا باتیں کہی تھی. انہوں نے کہا ہم اٹھ کر بنانے لگے. سو اس سچے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا. خدا ان کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. میں گزارش کرتا ہوں مبشر بابر فنگر صاحب نے تشریف لے آئے. ساری دنیا میں آرتھوڈاکس فنڈامنٹل کرسچنز راسخ الاعتقاد مسیحی ایماندار اس ناقابل فراموش ناقابل تردید سچائی پر پختہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا معتبر لا خطا لا ریب اور غیر مبدل کلام ہے جو آسمان کے خدا کا نسل انسانی کی رشد و ہدایت روحانی ترقی اور میچورٹی کے لیے بے مثال بیش قیمت تحفہ ہے. کتاب مقدس بنیادی طور پر 2 عہود یا 2 ٹیسٹمنٹس پر مشتمل ہے. اس میں عہد عتیق اولڈ ٹیسٹمنٹ اور عہد جدید نیو ٹیسٹمنٹ. دور حاضرہ میں دنیا بھر میں کئی ایسے آزاد خیال لبرل مائنڈڈ لوگ موجود ہیں
بلند نہیں مانتے، ان کے مطابق یہ خدا کا حقیقی کلام نہیں ہے، اور نہ ہی مسیحی کلیسیا کے لیے یہ فائدہ مند ہے، بلکہ محض دل فریب کہانیوں کا مجموعہ ہے جن کا تعلق یہودی قوم سے تھا۔ لیکن بحثیت مسیحی ایماندار ہم عہد عتیق کو من و ان الہامی اور خدا کا کلام مانتے ہیں، بلکہ برملا اس کی تعلیم دیتے ہیں اور یقین مطلق رکھتے ہیں کہ بائبل کا زندہ خدا آج بھی عہد عتیق کی تعلیمات، معجزات اور کرداروں کے وسیلے سے بولتا ہے، نیز اپنی شخصی، خاندانی اور کلیسیائی صورتحال پر اس کا اطلاق بھی کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں خدا کی چنیدہ قوم کی تاریخ اور خدائے قادر مطلق کی آبا و عرفہ قدرت کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ نسل انسانی کی گناہوں سے نجات کا پہلا اعلان اور گناہ کے گٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لاچار اور بے کس انسان کے لیے پر امید روشن بادوں اور پیشن گوئیوں کا اندراج بھی عہد عتیق کے اوراق کی زینت اور جمال ہے۔ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے نسل انسانی کی نجات کا وعدہ پایۂ تکمیل کو پہنچتا ہے، اس لیے عہد عتیق کے بغیر عہد جدید مکمل نہیں ہوتا ہے۔ پروٹسٹنٹ اردو بائبل میں پرانے عہد نامے کی فہرست مسلمہ میں 39 کتب ہیں جن کو ادبی اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا نمبر ہسٹوریکل بکس یا تاریخی حصہ، دوسرا شاعری یا نظمیہ، اور پھر تیسرا پروفیٹک بکس یا نبوتی کتب ہے۔ تواریخی حصے میں توریت کی کتاب بھی پہلی 5 کتابیں جو توریت کے اندر آتی ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے بعد کی 12 کتب میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا بیان درج ہمیں ملتا ہے۔ نہمیہ کی کتاب عہد عتیق کے اسی حصے سے یعنی تواریخی کتب سے تعلق رکھتی ہے، اور فہرست مسلمہ میں اس کا 16واں نمبر ہے۔ اگرچہ نہمیہ کی کتاب کے تاریخی حصے میں ہمیں یوں تحریر ملتا ہے کہ نہمیہ بن ہکلیہ کا کلام جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نہمیہ اور عزرا کی کتب بنیادی یا ابتدائی طور پر 2 علیحدہ کمپوزیشنز ہیں۔ ابتدائی عبرانی نوشتوں میں یہ ایک ہی کتاب شمار کی گئی۔ یہودی مورخ یوسیفس اور یہودی تالمود کے مطابق یہ ایک ہی کتاب عزرا کی کتاب ہے۔ سیپٹواجنٹ پرانے عہد نامے کا یونانی ترجمہ، اس کے قدیم ترین نسخہ جات میں عزرا اور نہمیہ کی کتاب کو ایک ہی پیش کیا گیا ہے۔ چرچ فادرز یا آبائے کلیسیا میں سے اوریجن جس کا وقت یا دور 253 سے 185 عیسوی ہے، اور وہ پہلا بخاری مانا جاتا ہے جس نے
الگ شناخت دی تھی، اور اس کے تحریروں میں ان کو عزرا کی پہلی کتاب اور عزرا کی دوسری کتاب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لاطینی وولگیٹ یا لیٹن وولگیٹ، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے سینٹ جیروم نے عزرا کی کتاب کے دوسرے حصے کو نہمیہ کی کتاب کا نام دیا۔ جان وکلف اور کورڈیل نے اپنے انگریزی تراجم میں پہلا ایسپیراس اور دوسرا ایسپیراس کہہ کر ان دونوں کتب کو پکارا۔ 1948 میں یہی فرق، 1448 میں یہی فرق، یہی تقسیم پہلی دفعہ عبرانی نوشتوں میں دکھائی دیتی ہے۔ بائبل مقدس کی فہرست مسمہ کے مطابق اور تاریخی ترتیب کے لحاظ سے اس کی جگہ عزرا کی کتاب کے بعد آتی ہے۔ عزرا کی کتاب میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک خاص حصے کا آغاز ہوتا ہے جو نہمیہ کی کتاب میں پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ نہمیہ کی کتاب کا آغاز اس بات کی گماشی کرتا ہے کہ نہمیہ بن ہکلیہ ہی اس نوشتے اور کتاب کا مصنف ہے، لیکن عہد عتیق کے کچھ اسکالرز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہمیہ کی کتاب، یہ عزرا اور نہمیہ دونوں کی کمپائلیشن ہے اور دونوں نے مل کر اس کو لکھا ہے۔ نہمیہ یہ دو عبرانی الفاظ کا مرکب ہے، نہم اور یح۔ عبرانی زبان میں نہم کا مطلب ہے کمفرٹ یا کنسول، یعنی آرام دینا، تسلی دینا یا تشفی دینا، اور یح یہ یہوہ خدا کے نام کا ایبریویشن ہے یا مخفف ہے، جس کے معنی بنتے ہیں یہوہ کنسولز، یہوہ کمفرٹس، یہوہ نے تسلی دی ہے، تسلی دیتا ہے، تشفی دیتا ہے اور اپنے لوگوں کو آرام دیتا ہے۔ نہمیہ کی کتاب میں اس کی بابت جو کچھ مرقوم ہے، اس کے علاوہ ہمیں اس کے بارے زیادہ نہیں ملتا، تاہم اس کے زمانے پر مصر میں الفدینے کے مقام سے دریافت شدہ یا ڈسکورڈ پیپائرس جو 50 کاتبین میں لکھے گئے، ان کے وسیلے کافی روشنی پڑتی ہے۔ یہ اوراق یا پیپائرس یہودیوں کی ایک چھاؤنی سے جو دریائے نیل پر ایک جزیرے میں تھی تعلق رکھتے ہیں اور عبرانی زبان میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں ان خطوط کی نقلیں بھی شامل ہیں جو یروشلیم اور سامریہ کے ناظموں کو لکھے گئے، اور وہ بھی جو ناظموں نے جوابی خط لکھے تھے ان کا بیان بھی ہمیں ان کے اندر ملتا ہے۔ اور ان پیپائرس ہمیں متعدد لوگوں کے نام ملتے ہیں جو نہمیہ کی کتاب میں درج ہیں۔ الہامی نوشتے نہمیہ کی بابت بیان کرتے ہیں۔ نہمیہ بن ہکلیہ جو ارتخشستہ بادشاہ کا ساقی یا کپ بیرر تھا۔ نہمیہ کا صحیفہ پہلا باب، اس کی پہلی بات آیت کے آغاز میں ہمیں ملتا ہے نہمیہ بن ہکلیہ کا کلام۔ پہلے باب کی 11ویں آیت کے آخری حصے کے اندر ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے، میں تو بادشاہ کا ساقی تھا۔ اسی زمانے کے الفدینے پیپائرس کے مطابق ارتخشستہ بادشاہ وہ تھا جسے پہلے لونگی مانس کہا جاتا تھا، جس نے 423
विलमिंगटन वो ये कहते हैं कि ये लफ्ज साकी, इससे मुराद है बादशाह का पर्सनल प्रेस सेक्रेटरी। और फिर डॉक्टर चार्ल्स राइली ये कहते हैं कि वो एक ऐसी पोजीशन पर था, एक ऐसे जिम्मेदार ओहदे पर था जहां पर उसका काम ये था कि बादशाह को पेश की जाने वाली मैं तो वो चखे या टेस्ट करे कि उसके अंदर कोई जहरीला मवाद तो मौजूद नहीं है। फिर ये भी कहा जाता है कि साकी से मुराद एक बाएतमाद शख्स जो बादशाह की मैं चेक करता था कि उसके अंदर जहर तो नहीं। ये लफ्ज साकी मरवजा आम मानों में इस्तेमाल नहीं है, बल्कि अहम जिम्मेदार ओहदे को जाहिर करता है। इसका सबूत ये है कि बादशाह नाहमिया से बड़े दोस्ताना लहजे में बात करता है, और फिर ये भी जाहिर होता है कि नाहमिया के सफर को बादशाह रुखसत या छुट्टी तस्वर करता है। नाहमिया का सहीफा 2 बाब उसकी 4 आयत के अंदर हमें ये बयान मिलता है। मजीद बना बादशाह की तरफ से नाहमिया को लेटर्स दिए गए, परवाने दिए गए जो ये जाहिर करते हैं कि उसे गवर्नर का ओहदा देकर यरूशलेम की तरफ भेजा गया। असरे हाजरा के ईमानदार और यंग जनरेशन के जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको आज सुबह मैं हौसला देना चाहता हूँ कि बाइबल का खुदा हर तरह के हालात और जुल्मतों में अपने लोगों को सरफराज करना जानता है। हम अहदे अतीक में इसकी कई मिसालें देखते हैं। मुकद्दस यूसुफ की बाबत, मुकद्दस दानियल की बाबत, मलिका आस्तर की बाबत, सदरत मेशक और अबदनजू की बाबत जो असीरी के अंदर थे, गुलामी के अंदर थे, लेकिन यहोवा खुदा ने उनको एक दोस्त पर सरफराज किया और उनको दुश्मन के मुल्क में दयारे गैर के अंदर इज्जत दी और सरफराज किया। जब हम कदीम फारसी बादशाह की तारीख का मुताला करते हैं तो हमें उनका ये दस्तूर मिलता है कि वो अपने गुलाम शुरफा में से चंद टैलेंटेड जीनियस लोगों को चुन लेते और उन्हें हुकूमत में खिदमत करने के लिए तरबियत दिया करते थे। दानियल नबी का सहीफा पहला उसकी 4 और 5 आयत के अंदर ये बयान मिलता है कि ये नौजवान जो यरूशलेम से असीर होकर गए थे, इनको दरबार के अंदर आला ओहदों पर के मसीही होने के सबब से उनके साथ तासुब बरता जाता है, नफरत की जाती है, उनको लेट डाउन किया जाता है। हाँ, ये दुरुस्त है, लेकिन जो कुछ खुदा का कलाम कहता है वो बहुत दुरुस्त है और वो किसी खास सूरत हाल के लिए नहीं है, बल्कि हर तरह के हालात के अंदर, हर तरह की ज़रूरतों और मायूसियों के अंदर खुदा का कलाम ये हौसला हमें देता है। अमसाल की किताब उसका 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। आज जब हम अपने पंजाबी कल्चर में किसी ताकतवर बारसूख आदमी से कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं यार ये तो गाली नहीं है, तो मेरे खबे आता काम देगा। तो अमसाल की किताब का मुसन्निफ कहता है कि दौलत और इज्जत और उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। अमसाल की किताब 22 बाब 4 आयत, दौलत
इज्जत व हया, खुदावंद के खौफ और फिरौतनी का अजर, ये खुदा देता है। सरफराज खुदा करता है, ओहदे खुदा देता है। और मुकद्दसा हन्ना ने अपनी दुआ में ये कहा, खुदावंद मस्कीन कर देता है और दौलतमंद बनाता है। कौन बनाता है? जरा बोलिए, कौन बनाता है? वही कष्ट करता है और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को पूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको शहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए। हमें ये हौसला रखना चाहिए और खुदा के कलाम की बातों पर ध्यान देना चाहिए। सरफराजी का ताल्लुक मजहब के साथ नहीं है, रंग के साथ नहीं है, जात के साथ नहीं है, बल्कि सरफराजी दौलत इज्जत ये यहोवा के हाथ के नीचे फिरौतनी से रहने वालों को मिलती है। और वो अपने लोगों को गटाटोप तारीकियों में रोशनियां बनाकर इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। नाहमिया, ये अज़रा का हम असर, ये एक ही वक्त के अंदर दोनों अपनी अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे थे। अज़रा एक काहिन था और बाइबल मुक़द्दस का उस्ताद फ़िक़ी था। उसका बुनियादी काम यरूशलेम के लोगों की पाकीज़गी या प्यूरिफिकेशन था। नाहमिया एक सियासतदान और तामीर करने वाला था। उसका बुनियादी काम यरूशलेम के लोगों की हिफाजती दीवार की तामीरे नौ था। और हम इन दोनों शहीदों के अंदर इन दोनों शख्सों को इंतहाई आसान तरीके के साथ, बगैर एक दूसरे की टांग खींचे, बगैर एक दूसरे को डिस्टर्ब किए, अपनी अपनी खिदमत करते हुए देखते हैं। नाहमिया और अज़रा ये असरे हाज़रा के ईमानदारों के लिए, कलीसियाई क़ियादत के लिए, कलीसियाओं का इंतज़ाम करने वालों के लिए ये एक चैलेंज है। और वो चैलेंज ये है कि हमें अपनी अपनी जगह पर अपनी खिदमत और खुदावे को पहचानने की जरूरत है। मैं मुआफ़ी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी कलीसियाई इंतजामी हल्के रैसल मीडिया के अखबारों से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, जहां पर धींगा मुश्ती, टांगे खींचना, एक दूसरे पर इल्जामात देना और जायज और नाजायज तरीकों से ओहदों पर काबिज रहने के लिए कोशिशों का काम जारी है। लेकिन ये पुराने अहद के दो किरदार ये पैगाम देते हैं, अगर हमें अपनी खिदमत की पहचान मिल जाए, अपने बुलावे का इदराक मिल जाए, तो हम मिलकर मसीह के बदन की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं और कलीसियाई हिफाजती दीवारों की तामीर नौ के काम के अंदर शरीक और शामिल हो सकते हैं। मसीह के बदन में यानी कलीसिया हर एक शख्स को अपनी खिदमत और बुलावे को पहचानने की जरूरत है। उस वक्त तक कलीसियाई तरक्की ये मुमकिन नहीं हो सकती जब तक कलीसिया का हर एक फर्द अपने बुलावे और अपनी खिदमत को पहचान नहीं लेता है। बहुत दफा लोग बगैर बुलावे, बगैर खिदमत के, सिर्फ इज्जत के लिए, ओहदों पर काबिज रहने के लिए ये करते हैं। ऐसी जगहों पर रूहानी तरक्की और बलूगत का काम रुक जाता है, कलीसियाएं मैच्योर नहीं हो पाती है, मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंच नहीं सकती है और बजाय तामीर का काम होने के
ज़बूर नंबर 32 उसकी 9वीं आयत के अंदर ये लिखा है, तुम घोड़े या खच्चर की मानिंद ना बनो जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने के लिए सांस, दहाना और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने के भी नहीं है। लेकिन खुदा ने हमें सी शौक, सी फहम पैदा किया है, हमें बुलाया है, हमें बुलाने की पहचान दी है, हम पर अपने पाक रूह को नासिल किया है। हमारी हर काम घोड़े और खच्चरों की तरह नहीं, बल्कि बुलाए हुए जीनत ईमानदारों यानी अज़रा और नहमिया की तरह होनी चाहिए, जिन्होंने मिलकर यरूशलेम की बेदारी, आबादकारी और फसीह की तामीर नौ के काम को जारी रखा था। जब हम नहमिया की किताब का मुताला करते हैं, आप में से कितने लोगों ने कभी नहमिया की सारी किताब पढ़ी है? ये तो हमारी कलीसियों का हाल है। अगर हम इस किताब को पढ़ें तो हमें जिक्र मिलता है कि हालात नहमिया के लिए साजगार नहीं थे। अभी वो आया ही था कि काम को शुरू करे, मुखालफत शुरू हो गई। सामरी और अमूनी और अरबी इन लोगों ने मिलकर मुखालफत शुरू कर दी, लेकिन नासाजगार हालात के बावजूद, वसाइल ना होने के बावजूद नहमिया ने ये चैलेंज, ये दीवार 52 दिन के अंदर मुकम्मल कर ली थी। और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है उन खातमों के लिए, उन बुलाए हुए खातमों के लिए जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास हालात साजगार नहीं है, लेकिन पाक रूह की कुदरत से वो पाकिस्तान के अंदर कलीसियों की तरक्की और बलूगत के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और आसमान पर ऐसे लोगों का नाम सुनहरी हरूफ के अंदर लिखा जाएगा। मैं आज इस खास सेमिनार अपने भाइयों से, खादिमों से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से ये कहना चाहता हूं, जो कुछ माजी में हो गया आओ उसको भूल जाए, उसके औरात को बार बार ना निकाले, ना टटोले। माजी में क्या हुआ, किसने क्या किया था, चैलेंज ये है, आओ आज से नए काम का आगाज करें। और वो इस तरह करें कि अपने बुलावे और खिदमत को पहचाने कि खुदा ने मुझे क्यों चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर रखा है। ये बड़ा जरूरी है। आम हालात में यही सोचा जाता है कि हम एक्सीडेंटली दुनिया में आ गए हैं, अब हमारा काम ये है, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, कोई कांक्षा मिल जाएगा, बच्चे होंगे और फर्क हो जाएगा। हमने कभी अपने बुनियादी काम, उस चैलेंज के लिए, उस विजन के लिए, उस रोया के लिए जो खुदा ने हमें देकर भेजा है, उस खास मकसद के लिए जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, रखे गए हैं, मौजूद हैं, कभी गौर नहीं किया। खुदा का कलाम खोलिए मेरे साथ, यिर्मयाह नबी का सही। आइए देखें यिर्मयाह नबी का बुलावा क्या खूबसूरत है। पहला बाब 4 आयत, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नासिल हुआ। क्या हुआ? मेरी दुआ है कि पाकिस्तानी कलीसिया का हर एक फर्द, लड़का हो या लड़की हो, उसकी गवाही ये हो कि खुदा का कलाम मुझ पर नासिल हुआ। मुआफी के साथ पासवान हजरात बैठे हैं, मैं एक बात करना चाहता हूं। अगर हम खिदमत करने वाले लोग जो पाकिस्तान में खिदमत कर रहे हैं, उनको एनालाइज करने की कोशिश करें और सर्वे किया जाए और पूछा जाए कि आप क्यों खिदमत करते हैं।
99% آپ کو کہیں گے باہر سے تو گورا آیا تھا، تو کالا آیا تھا، وہ نبوت کر گیا جو مصیبت چھپا گیا۔ ڈائریکٹ پرسن، ہم نے کبھی خدا کی آواز سننے کی کوشش نہیں کی۔ اگر اس نے کہہ بھی دیا ہے تو خود جاؤ خدا کے حضور میں کہ بلایا تو نے ہے، کام میں نے کرنا ہے، ڈائریکٹ میرے ساتھ کلام کر اور مجھے بتا کہ میں تیرے بیٹے یسوع کے بدن کے اندر کون سی خدمت کو مؤثر طور سے کر سکتا ہوں۔ ہمیں یہ پھنسے پھنسائے خدمتیں کرنے کے انداز کو چھوڑنا ہوگا کہ پادری صاحب کہیں گے ہم نہیں کرتے پھر کرنا ہی پہنے۔ کئی لوگوں کے بپتسمے کی گواہی یہ ہوتی ہے کہ پھر کی کر دے اور ہونا نہ جیتا ہم کر چھڑے نہ کرنا لے سوچ دینے نہ کرونا لے سوچ دینے کہ یہ کام تو شخصی قائلیت کا اور خدا کے بلاوے اور اس کی مہربانی کا ہے۔ میری دعا آج صبح جو سیمینار کے پارٹیسپینٹس ہیں اور جو ویورز ہیں ان کے لیے یہ ہے، ہماری گواہی یہ ہو کہ خدا کا کلام مجھ پر، اور اس نے فرمایا اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے وطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ جس وقت یرمیہ نبی نے یہ صحیفہ لکھا، الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود نہیں تھی کہ پتہ لگا لیا جائے کہ کیا ہے۔ جب کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، تیرا بلانے والا تجھے جانتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور میری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ ہاللیلویہ۔ خدا کرے ہر ایک ایماندار وہ یہ کہہ سکے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو خدمت کر رہا ہوں، اس کی بنیاد خدا کا کلام ہے۔ خدا نے مجھے کہا ہے، اس نے فرمایا ہے کہ میں نے تجھے قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا ہے۔ تب میں نے کہا ہائے خدا دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں، لیکن خداوند نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا، تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میں نے تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خداوند نے ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا اور خداوند نے مجھے فرمایا، غور سے سنیے، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا، دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ تو اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ کیا خوبصورت غلام، جہاں پر اکھاڑنے کی ضرورت ہے وہاں پر اکھاڑنا۔ جو بلائے نہیں نہ ہوتے، وہ جن کو اکھاڑنا ہوتا ہے انہوں پانی دیتے رہتے۔ خدا کہتا ہے تجھے اکھاڑنے کے لیے، ڈھانے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے اور گرانے اور پھر تعمیر کرنے اور لگانے کے لیے میں نے تجھے بلایا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک ایماندار مسیح کے بدن میں اپنے بلاوے کو جانے اور پہچانے۔ خدا نے فارغ بیٹھنے کے لیے، چھٹیاں گزارنے کے لیے، پکنک منانے کے لیے کسی کو نہیں بلایا کہ بیٹا سارے کام کر کے تو سویرے اٹھنے پھر سو جائے، پھر اٹھنے پھر سو جائے۔ بعض ایمانداروں کا لائف سٹائل دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ یسوع بڑی دیر سے آنے والا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ دروازے پر ہے اور وہ جلد آنے والا ہے۔ آؤ اپنے بلاوے اور خدمت کو پہچانے اور اس کی تکمیل کریں جس کام کے لیے ہم بلائے اور بھیجے گئے۔ ایک اور حوالہ دیکھیے میرے ساتھ، غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب 15ویں اور 16ویں دو آیات۔
खुदावंद फरमाता है, लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट ही से मखसूस कर दिया, ये बंदों की मखसूसियत तो बात की बात है, ये जरूरी है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन बंदे उन्हीं को मखसूस करें जिन्हें खुदा ने पहले से किया। कलाम कहता है और अपने फजल से बुला लिया। जब उसकी ये मर्जी हुई, गौर कीजिए, कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं, तो ना मैंने गोश्त और खून से सदा दी। यिर्मयाह का बुलावा ये था कि वो उखाड़े, खाए, हलाक करे, गिराए और तमीर। पौलुस रसूल का बुलावा वो इस बात के लिए है कि वो खुदा के बेटे को अपने अंदर से, अपने किरदार के वसीले से, अपने कैरेक्टर के वसीले से रिफ्लेक्ट करे और जाहिर करे। ये बड़ा अहम बुलावा है। बाज़ औक़ात जिन बुलावों की समझ है वो सिर्फ ये है, यहाँ पर आना, खड़े होना, मीटिंग चलाना, इंतजामात करना, चंद ओहदों की बाबत हमें इल्म है, हम उन्हीं के अंदर घुसे रहते हैं। लेकिन ये बुलावा क्या खूबसूरत है कि खुदा ने पौलुस रसूल को इसलिए चुन लिया ताकि वो उसके बेटे को अपने अंदर से रिफ्लेक्ट करे, जाहिर करे, ताकि लोग यीशु को पौलुस रसूल के अंदर से, उसके किरदार से, उसकी बातों से देख सके और खुदा करे हम में से हर एक ये रोल अदा कर सके। हमने जो अपने आप को शैतान का सिनेमा बनाया है, हर रोज नई फिल्म को हमारे अंदर से चलाता है, लोग देखते हैं यार की अजीब शय है, हर रोज कोई ना कोई नई चीज इब्लीस हमारे अंदर इंसर्ट करता है और फिर वो चलती है। खुदा करे हमारे बदन उसके लिए हो जिसने अपनी जान सलीब पर देकर हमारे बदनों की कीमत अदा करके हमें खरीद लिया है। हम अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर कर सके और लोग हमारे किरदार के वसीले, हमारी गुफ्तगू के वसीले, हमारे कैरेक्टर के वसीले हमें नहीं बल्कि खुदा के बेटे यीशु को देख सके। ये बुलावा बहुत जरूरी है और याद रखिए बाइबल का खुदा जिन्हें बुलाता है, जिन्हें मुकर्रर करता है, जिन्हें भेजता है, उनके पीछे खड़ा रहता है, उनको कुव्वत बख्शता है, उनको वसाइल बख्श देता है ताकि वो उस रोया की जो खुदा की तरफ से उन्हें मिली है तकमील कर सके। फिलिपियों के नाम खत पौलुस रसूल साहब बोलिए मेरे साथ। पहला बात छठी आयत, फिलिपियों के नाम खत पहला बात छठी आयत। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। अपनी बदनी हालत पर निगाह न करें, अपने वसाइल पर निगाह न करें कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास ज्यादा दौलत नहीं है, वसाइल नहीं है, मैं बूढ़ा हूँ। आप हो सकते हैं, लेकिन आपको बुलाने वाला वो कामों की सी ताकत और कुव्वत देने की कुदरत रखता है और वो आपको अपने जलाल के लिए, उस नेक काम की तकमील के लिए जो उसने आपके वसीले शुरू किया है, आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम अपने बुलावे और खिदमत को पहचान जाए। जब मैं छोटा था लोग हैरानी से देख रहे हैं कि छोटा होता था। हाँ, ये तारीख का एक वाक़ा है। बच्चे खेलते थे, जो तो खेलते थे ना, पानी माल दे उधर भी हो गया, उधर भी हो गया, वो तो खेलते थे ते जिन्हें रह जाना ना, जिन्हों नाम ना लड़ा के उन्हें एवं विचकार मुंडियां पाते फिरना, खेडोगे खड़ाओगे नहीं तो बेच विचोला। आज हमारी कलीसियाओं में
कुचोले वाले बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, जिनके पास ना बुलावा है, ना निजात है, ना खुदा के बेटे की खुशखबरी का इतराक है, कभी रूह कुद्स के पानियों का टेस्ट नहीं मिला, कुव्वत का लिबास नहीं मिला, और वो इसलिए छोड़े गए हैं। चलो कुचोला दे पाओगे लेकिन मजबूत रहिए, पक्के हो जाइए, ठहरे रहिए। ये कुचोले वालों का वक्त बिल्कुल थोड़ा है, ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिसने आपको बुलाया है वो उस नेक काम को जो उसने आपके अंदर शुरू किया है पूरा करेगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नहमिया को जो रिपोर्ट दी गई थी उसकी बात देखते हैं। हमारा आज का जो उन्वान है वो है यरूशलेम की फसीह की असरदार ताबीर। क्यों? आइए निकालिए नहमिया की किताब और पढ़िए मेरे साथ। मुझे कलीसिया पाकिस्तान से शिकायत है और वो ये है कि हम ना तो सेकुलर तारीख की किताबों को हाथ लगाते हैं और ना कभी बाइबली तारीख पर हमने निगाह डाली। ये रूहानी बेकरी वालों ने हमें सहज पसंद बना दिया। वो इतवार को एक टोस्ट बना के हमारे हाथों में दे देते हैं, हम खा के निकाल मार के चले जाते हैं। बाइबल पर रिसर्च का काम, बाइबल की तारीख के मुताला का काम आम ईमानदार को दूर लीडर्स भी करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन कभी इस तारीख में से होकर गुजरिए, आपको यहोवा के परों की तपश और ठंडक का एहसास अपने साथ मिलेगा। नहमिया की किताब पहला बाब 20वें वर्ष किस्लेव के महीने में, इब्रानी कैलेंडर या तकवीम का ये एक महीना है जो हमारे कैलेंडर या तकवीम के मुताबिक नवंबर और दिसंबर का ये महीना बनता है। इस मौसम में, इन महीनों में नहमिया कहता है जब मैं कसरे शोषण में था कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में पूछा जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं और निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। ये तकरीबन 446 काफमीन ये वक्त था जब नहमिया कसरे शोषण बादशाह के महल में एक बड़ी आरामदेह कंफर्टेबल फैसिलिटेटेड लाइफ गुजार रहा था। फारसी दौर में वो एक इंतहाई आला ओहदे पर फाइज, बादशाह की कुर्बत, बादशाह की हजूरी से लुत्फानंदोज होना। लेकिन एक दिन एक खबर ने उसे हिलाकर रख दिया। मेहरबानी से खुदा का नाम सुनो। वो बादशाह के महल में कसरे शोषण, बादशाह के पास बड़ी आरामदेह जिंदगी गुजार रहा था। यहूदा से कुछ लोग उसको मिलने के लिए आए और उसने उनसे अपने लोगों की बाबत पूछा। लगता है नहमिया का बदन तो बादशाह के महल में था, लेकिन रूह यहूदा के असीरों के दरमियान रहती थी। वो अपने लोगों को कभी भूला नहीं था, उसने अपने भाइयों को कभी
कि वो हम पर मेहरबानी करते हैं कि फेसबुक पर ऊट पटांग पोस्टें लगाते रहते हैं ताकि पाकिस्तान से रहने वाले की शामत आई जाए, बड़े स्कॉलर बनते हैं। उस वक्त तो आप स्कॉलर नहीं थे जब आप पाकिस्तान में थे, क्यों हमारे लिए कांटे बोने की कोशिश कर रहे हो? चैलेंज है, नहमिया की जिंदगी का शाही प्रोटोकॉल है, आला होता है, लेकिन दिल अपने लोगों के साथ लगा हुआ है, वो कभी उनको भूल नहीं सकता है, कभी फरामोश नहीं कर सकता है। और सिर्फ लोगों की बात नहीं है, आज भी यरूशलेम का हुस्न उसकी आंखों को खीरा कर देता और उनको चकाचौंध कर देता है। इस खबर में उसके मजहबी कौमी जज्बे को प्रोवोक किया, छेड़ा, इस्ताल दिया, और वो 3 सवाल उनसे पूछता है जो यहूदा से आए थे। आज खुदा हमें से किसी को सरफराज कर दे, इज्जत मिल जाए, ओहदा मिल जाए, सबसे पहला काम जो हमारी मजहबी और सियासी क़यादत करती है, दरवाजों पर दरबान बैठा दिए जाते हैं, अंदर ना बुलाओ, जदों भी जाओ पता साफ सुनता है, कहते सुनना तो नहीं सुन गया। वो किस लिए बुलाया गया, क्यों खुदा ने उसको सरफराज किया, क्यों ओहदे पर बैठाया? इन गरीबों के लिए, इन मुसीबत में पड़े हुए, जिल्लत के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए, जिनके लिए आज हमने अपने दरवाजों को बंद कर दिया है। नहमिया का चैलेंज ये है कि बदन कहीं पर भी हो, लेकिन मेरी रूह मेरे लोगों और मेरे खुदा के शहर के अंदर रहती है। उसने उनसे पूछा, वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं, उनकी हालत क्या है? यरूशलेम किस तरह का है? उसको पता था कि जब बाबली बादशाह नबूकदनेस्सर ने थर्ड अटैक किया था, तीसरी असहारत की थी 586 काफमीन में, तो उन्होंने यरूशलेम और हैकल को जला दिया था। नहमिया से पहले 2 ग्रोह अज़रा की क़यादत में वापस जा चुके थे, और नहमिया उनसे पूछता है, उसने उनसे कहा उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे, और यरूशलेम के बारे में। ये तीनों सवाल नहमिया के कोर इंटरेस्ट को, उसकी दिलचस्पी को जाहिर करते हैं। उसकी दिलचस्पी बादशाह के महल नहीं है कि वो उनको ले गया हो, ये मेरा बेडरूम है, यहाँ मैं आराम करता हूँ, यहाँ मैं वॉक करता हूँ, इतने कार्ड मुझे मिले हुए हैं, मैं बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहा हूँ। उसने उनसे पूछा, वो जो असीरी से बच निकले और यहूदा में रहने थे, और यरूशलेम जो खुदा के रहने की जगह और उसका वक्त है, उसकी हालत क्या है? जो कुछ उसको बताया गया, उसने उसके अंदर एक खौफ और एक ज़ख्म लगा। और मेरी दुआ है, ये रूहानी ज़ख्म और खौफ आज हम अपने साथ लेकर जाएं। झूठी तसल्लियों से अपने आप को शांत न करें। आओ अपनी और अपनी कौम की हकीकी हालत पर गौर करें, ग्राउंड रियलिटीज को देखें। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जिस पार्टी से भी सिलेक्ट होकर आते हैं, सिलेक्शन के साथ उनके कहने पर बयान देते हैं, पाकिस्तान में मसीही बड़ी आराम की जिंदगी गुजारते हैं। कभी आप बाहर निकलो, देहातों में जाओ, बस्तियों में जाओ, मेरी कौम के उजड़े हुए और बर्बाद
कब्रिस्तान भी वागुजार नहीं किए जा सकते हैं, चर्चिस के मीनार गिराए जा रहे हैं, सलीमें गिराई जा रही हैं, हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। जाओ जाकर कह दो हमारा में है, यूएनओ को कहोगे उसको धोखा दे सकते हो, लेकिन यहोवा की आंख कभी धोखा नहीं खाती और वो अपने लोगों के हाल को, उनकी हालत को देखता और जानता। उसको कहा गया वो बाकी लोग जो असीरी से छूट कर उस सूबे में रहते हैं, निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े। यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जल गए। ये सुनकर नाहमिया की किताब लिखा है, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठ कर रोने लगा। ये नहीं कहा जगह में होते हैं नहीं, अगर आज खुदा ने आपको सफरा समझ लिया है, इज्जत दे दी है, तो कभी भी झोंपड़ियों में रहने वालों को हकीर ना जानना। इनका सरफराज करने वाला तख्त पर बैठा हुआ है, इनकी दुआओं को सुनने वाला, इनकी फरियादों को सुनने वाला, वो कभी अपने कान बंद नहीं करता और अपने कान फेरता नहीं है। यहूदी एक दुआ किया करते थे, ऐ यरूशलेम अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। अगर मैं तुझे याद न रखूं और अगर मैं अपनी बड़ी खुशी पर यरूशलेम को तरजीह न दूं। ये वो शहर था जहां पर यहोवा की मुकद्दस हैकल, उसका अबर, उसका पाक तरीन मकान वहां पर मौजूद था और इस शहर की दीवार तो अपनी जगह पर थी। यहोवा इसकी फसील और इसको घेरे हुए और इसकी हिफाजत करने वाला था। लेकिन आज यरूशलेम की फसील टूटी हुई और लोग नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। हमारी मौजूदा कलीसियाई सूरत हाल इससे बेहतर नहीं है। गीत तो हम गाते हैं खुदावंद अपने लोगों में, लेकिन यकीन किसको है कि आया भी है कि नहीं। जिस तरह की हरकत हम मसलों पर करते हैं और काम करते हैं, वहां यहोवा के आने और रहने का सवाल पैदा होता है। हम सब मुसीबत के अंदर पड़े हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इस बात की गवाही नहीं करती कि यहोवा इनमें रहता है, वो तो अपने लोगों में रहना पसंद करता है। जब उसके लोग बाबल की असीरी के अंदर चले गए तो हिजकिय्याह कहता है, मैंने खुदा के जलाल को नहरे कबाल के किनारे देखा, हैकल पर से उठ गया और वहां चला गया जहां उसके लोग थे। और यीशु ने कहा, जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में मौजूद हूं। हालेलुया। यरूशलेम की फसील टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं। जब दीवारें गिर जाती हैं, शहर में रास्ते बना लिए जाते हैं, कबाड़ और फाटक टूट जाते हैं, आवारा जानदार और वहशी परिंदे भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। जरूर है कि यरूशलेम की फसील तामीर की जाए, इसके फाटक लगाए जाए, इसको फिर से असरनो तामीर किया जाए। हिफाजती दीवार इंतहाई जरूरी है। ये टूटी हो तो कौन जानता है कि ये शाहरायाम है या ये किसी का घर है। मैं
मैसेज के दौरान शेर व शायरी करने का काल नहीं है, लेकिन एक ज़हन में बात आ रही है। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान में, लोगों ने मेरे शहर में रास्ते बना दिए। जब से हमारी रूहानी और कलीसियाई दीवारें, इखलाकी और ईमान और इकायत की दीवारें मस्मार हो गई हैं, गिर गई हैं, शैतान सरेआम हमारे मस्जिदों पर चढ़ा फिरता है और वो हमारी भेड़ों को, कलीसियों को बड़ा गंदा कर रहा है। कोई उठ जाए, खुदा बुला रहा है, आओ यरूशलेम यानी कलीसिया पाकिस्तान की फसील की तामीर करने के लिए उठ खड़े हो। दो रीजंस के लिए, दो वजूहात के लिए दीवार बनाना बहुत जरूरी है। पहली बात, दीवार हिफाजत को जाहिर करती है। दीवार हो तो चार दीवारी एक्ट लागू हो जाता है, इसने मेरी दीवार पास से देखा। तो दीवार ना हो तो कोई एक्ट लागू ही नहीं है। ये हिफाजत के लिए जरूरी है ताकि बाहर वालों को बाहर रखा जाए। सारे अंदर रखने के लायक नहीं होते, कईयों को बाहर भी रखना पड़ता है और उसके लिए दीवार इंतहाई जरूरी है। और फिर ये उन लोगों के लिए, हशरात के लिए जो रींग कर या स्नीक अटैक करते हैं, उनके हमले को रोकने के लिए दीवार का बनाया जाना ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अलहदगी के लिए दीवार जरूरी है। जब पुराना दौर था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, शहरों में दीवारें थी, फिर दीवारें आ गई और अब दीवारें देखकर पता लग रहा है कि कितने जी रही है, कितने बार। हर दीवार के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। दीवार जरूरी है ताकि अंदर वालों को अंदर रखा जाए। पहले मैंने कहा था दीवार जरूरी है, बाहर वालों को बाहर रखा जाए। फिर मैंने कहा दीवार जरूरी है ताकि अंदर वालों को अंदर रखा जा सके। अगर दीवार नहीं होगी, ना कोई अंदर का डर होगा, ना कोई बाहर का शायबा होगा, कोई इम्तियाज नहीं होगा। इसलिए जरूरी था कि दीवार बनाई जाए और ये जरूरी थी ताकि वो यहूदी जो आसानी से फ्रीक्वेंट गैर कौमों के साथ ताल्लुक बढ़ा रहे थे, पीके बढ़ा रहे थे, उनको रोका जा सके, उनकी आजादी के सामने दीवार खड़ी की जा सके। ये इंतहाई जरूरी था और दीवार बनाए जाने का मकसद ये था ताकि हिफाजत हो, चार दीवारी का ख्याल रखा जाए और गैर अक़वाम से अलहदगी ये इंतहाई जरूरी है। हम यरूशलेम की फसील की बात करते हैं, बड़ा मुश्किल था, मुखालफत हुआ, उन्हें गए कि तुम आ गया ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी। फिर नहमिया ने दीवार बनाई, उसके लोगों के एक हाथ में हथियार होता था और एक हाथ में काम करने के लिए जो जरूरी था वो होता था। दीवार बनाना जरूरी है लेकिन आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जब खुदा कहे, जब खुदा कॉल दे, जब खुदा बुलाए कि दीवार को बनाया जाए, फिर ये 52 दिन के अंदर ये काम अपनी तकमील को पहुंच सकता है। अगर आप दूसरा बात नहमिया की किताब देखें 17 आयत, तब मैंने उनसे कहा तुम देखते हो हम कैसी मुसीबत में हैं, यरूशलेम उजाड़ पड़ा है। क्या पड़ा है? और यीशु मसीह ने कहा मैं इस भीड़ को उन भेड़ों की मानी देखता हूं जिनका कोई चरवाहा, क्या उस वक्त चरवाहे नहीं थे? नाम ने हाथ चरवाहे तो थे, मजदूर भी थे, दिहाड़ीदार भी थे, सारे थे, चरवाहा कोई नहीं था।
क़यामत इस वक्त भी मौजूद थी, लेकिन यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। गौर से सुनो, आओ हम यरूशलेम की फसीह बनाए। क्या करें? क्या बनाए? ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान, दीवारों का न होना, ये जिल्लत की जिल्लत है। जरूरी है कि दीवारें बनाई जाएं, फसील तामीर की जाए। और आज की कलीसिया के लिए चैलेंज ये है, आओ हम अपनी खानदानी, मुआशरती, रूहानी और कलीसियाई दीवारों की तामीर करें। दीवारों का ना होना जिल्लत है। और आज हमारी कलीसियाएं, हमारे खानदान उस पाकिस्तान की मानिंद है जिसके गिर्द बाढ़ ना हो। गरीब होने का लोग ये भी फायदा उठाते हैं, जिन्हों कितने थाना लगो साढ़े मादे आते हैं, हमारे घरों में आ बैठता है। और मैं आज उन नौजवानों को भी ये कहना चाहता हूं जो चीजा लाकर स्पेशली बिठाते हैं, आओ साढ़े मले चलिए। बेटा, दीवारों की तामीर करो, जो बनाई गई है उनको गिराने की कोशिश ना करो। ये तो जिल्लत की जिंदगी है जिसमें हम समझते हैं कि हम बड़े तरक्की कर रहे हैं और हम बड़े ब्रॉड माइंडेड बनते जा रहे हैं। एक दिन ये आना जाना बर्बादी का सबब बन जाएगा। अपने ईमान और अकायद की दीवारों को बुलंद करें। ईमानदार को यह तो पता होना चाहिए कि उसके ईमान की फेथ स्टेटमेंट क्या है, उसके ईमान की बुनियाद क्या है। हम तस्लीस को मानते हैं, तस्लीस के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी सीखने के लिए तैयार नहीं हुए। कभी ये दुआ नहीं की कि खुदा मुझे समझ बख्श दे। आज हमने जिस्मानी इत्तेहाद की आड़ में दीने अकबरी राइज कर दिया है। हर तरह के ईमान के लोग एक छत के नीचे हैं, किसी को मालूम नहीं वो क्या करने के लिए, क्या कहने के लिए, क्या बोलने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जब तक ईमान की तफसीस न हुई और ईमानदार को ये पता न चला कि उसके ईमान की बुनियाद क्या है, उस वक्त तक भेड़िए हमारे भेड़ खानों को रौंदते रहे। पाकिस्तान में हर रोज तब्दीली मजहब के नाम पर हजारों केस सुनने के अंदर आते हैं। आरजू राजा का केस जो बड़ा ही पॉपुलर हुआ, उसके बाद फैसलाबाद के अंदर हर रोज ये कहानियां बनती जा रही हैं। मैं आज पूरे यकीन और वसूख के साथ कहता हूं, अगर हमारी खानदानी और मुआशरती और इखलाकी दीवारें बुलंद हो, हम कभी इस तरह के मामलात को फेस करने के लिए बेताब न हो। हमने अपनी दीवारों को गिरा दिया, कोई तखसीस नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका ईमान क्या है, कौन क्या सुना रहा है, कौन किस रूह के अंदर है। हम आज एक अजीब जिल्लत की जिंदगी के अंदर गिरफ्तार हो चुके। फिर हम इंटरनेट पर दुहाई देते हैं, हमारी सुन, हमारी सुन। जब कलीसियाई क़यादत कहती है हमारी सुन लो, कलाम का फैसला है गैर मौजूदों के पीछे भागने वालों का दुख बढ़ जाएगा, तो फिर किस तरह की बिकने और मोहब्बतें बढ़ा रहे हो? क्यों अपने घरों की दीवारों को तामीर नहीं करते? दीवारें हैं लेकिन एप्लीकेशन नहीं है। हमें जरूरत है बाहर रखने की चीजों को बाहर रखा जाए और अंदर रखने की चीजों को अंदर रखने के लिए फिर से दीवार तामीर की जाए, ताकि यरूशलेम हिफाजत के साथ रहे, यरूशलेम के मकीन और बासी हिफाजत के साथ जिंदगी गुजार सके। मैं आज इस
सेमिनार के तवस्सुल से कलीसिया पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूं, आओ होश के नाखून लें, कलाम मुकद्दस की तालीमात को अपनी जिंदगी की तरजीह बनाएं और अपनी खानदानी और कलीसियाई दीवारों की तामीर करें। मेरी दुआ है खुदा का पाकरू आपको ये करने के लिए तौफीक और जोर बख्शे। आइए अपने साथ साथ